antimicrobial susceptibility testing is very important for treating the infectious diseases and monitoring antimicrobial resistant in various pathogens. ठीक है, तो कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको? टू ट्रीट द infectious diseases. ठीक है, it is essential that the reports are relevant, timely, interpreted correctly to ensure the quality control, and also used in the guide the clinician or physician selection of the choose the antibiotics, and to accumulate the epidemiological information on the resistance of microorganism of public health, and also importance within the community. This is the definition. It is a determination of least amount of antimicrobial chemotherapeutic agent that will inhibit the growth of microorganism in vitro. In vitro means yes. तो क्या पर्पस है, समझ में आया एएसटी का? कहाँ पे यूज है? To help the physician and choose the correct antibiotics. So misuse of antibiotics can lead to antimicrobial resistance develop in your patient. Suppose this is doctor and this is the patient. ठीक है, तो patient came to doctor. Patient blood have certain type of bacteria, fungus, virus and parasites. So as a doctor, what he will do? First, examine the patient and take the history and listen the symptoms and make a diagnosis. Okay. Suppose doctor suspecting UTI. UTI means? Okay. So what sample should be collect? Urine sample. Okay. So urine sample will be collect and sent to the microbiology laboratory. As a microbiologist, हमारा काम क्या है? What I will do? First culture of the specimen. Culture of the specimen and followed by AST. तो सबसे पहले हम लैब में क्या करेंगे? सैंपल का कल्चर करेंगे. ठीक है, कल्चर करने के बाद हम उसको जो है दूसरे दिन देखेंगे ग्रोथ है. ठीक है, उसके बाद हम इसका एएसटी परफॉर्म करेंगे. ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग. So choose the right drug, kill the right microbe and right cure. This is the classification of AST. So these are the three classification. First diffusion, dilution and last diffusion and dilution. Okay. तो diffusion में Kirby-Bor disc diffusion method. ठीक है. These are the manually method. Okay. Kirby-Bor disc diffusion method, stroke method and dilution method में tube dilution, agar dilution and diffusion and dilution में e-test, flowmeter. Okay. तो Kirby-Bor disc diffusion method and stroke method, these are the qualitative test. But here tube dilution and agar dilution, this is the quantitative. ठीक है. So these are the requirements. First, culture media. What culture media will be used? MHA, Muller-Hinton agar. नाम सुना है? This is MHA, Muller-Hinton agar. इसी पे हम AST परफॉर्म करेंगे, right? Okay. Second requirement is inoculum, bacterial suspension. ठीक है, peptone water with bacterial colony. These are the inoculum or bacterial suspension. And last is antibiotic disc. Put the antibiotic disc and incubate the incubator. ठीक है, 37 degree centigrade for the overnight. These are the same specimen. ठीक है, जो हमारी पेट्री प्लेट है, ये इसका जो डायमीटर है 100 mm का डायमीटर है. ठीक है, तो इस पे हम 6 एंटीबायोटिक पुट करते हैं. ओनली 6 एंटीबायोटिक कैन बी पुट हियर.
ठीक है, बट आपको हम सिर्फ समझाने के लिए इधर बता रहे हैं, ये एक पेटी डिश है, ये एक पेटी डिश है, ठीक है, अलग अलग पेटी डिश में। सपोज दिस इज द एंटीबायोटिक डिस्क, दिस एंटीबायोटिक डिस्क, दिस इज द सिफेलोस्पोरिन, ठीक है, एंड दिस इज द पेनिसिलिन, ठीक, सेम पेशेंट, ठीक है, हम इसको डिवाइड करे हैं, सैंपल को एलिकॉट में डिवाइड किए हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इधर क्या है, ये डॉट डॉट क्या दिख रहा है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सस्पेंशन, ठीक है, इधर भी बैक्टीरियल सस्पेंशन। तो हमने क्या किया, ये प्लेट है, पेट्री प्लेट्स, ठीक है, ये प्लेट कौन सा मीडिया है, ये MHA, मुलर हिंटन अगार, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉन कल्चर करेंगे, लॉन मीन्स गार्डन, ठीक है, गार्डन में ग्रॉस होती है ना, तो हम इसको ऐसे लॉन कल्चर करेंगे, पूरे में कॉलोनी को हम स्प्रेड करेंगे, ठीक है, फिर एंटीबायोटिक पुट करेंगे, ठीक है, 6 एंटीबायोटिक 100 mm की डायमीटर की प्लेट में पुट करते हैं, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए एक एक किए हैं, ठीक है, तो ये है हमारा पेट्री प्लेट्स, और ये जो येलो कलर है दिस इज द बैक्टीरिया, ठीक है, आफ्टर इंक्यूबेशन ये प्लेट आपको दिख रही है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एंटीबायोटिक है, ये क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, इधर आप देख रहे होंगे जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक के रिम को टच कर दिया है, ठीक है, और इधर जो है बैक्टीरिया टच नहीं किया है, ये पेरीफेरी पे है, मींस ये सिफेलोस्पोरिन इस बैक्टीरिया को किल कर दिया है, दिस इज द ZOI, जोन ऑफ इनहिबिशन, ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म नॉट ससेप्टेबल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ऐसे ही सारी एंटीबायोटिक्स सारे ऑर्गेनिज्म के लिए ससेप्टेबल नहीं होती है, ठीक है, तो यहां पे क्या किया है, बैक्टीरिया टच द रिम, ठीक है, एंटीबायोटिक के रिम तक आ गया है, मींस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को किल नहीं सका, दिस आर द रेजिस्टेंट, ठीक है, तो जैसे सपोज दैट हमारे पास एक EST रिपोर्ट है, आगे हम दिखाएंगे, तो उसमें क्या है कि हमने जो है ये एंटीबायोटिक्स यूज किया, ठीक है, उसके बाद जो है पेनिसिलिन सिफेलोस्पोरिन ससेप्टेबल हो गई, ठीक है, बट पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो गई, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे आपका जो है जोन ऑफ इन्हिबिशन है वो क्लियर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे किल द बैक्टीरिया, ठीक है, ये पेरीफेरी पे है बैक्टीरिया, और यहाँ पे जो है टच द एंटीबायोटिक्स रिम, समझ में आया, ओके, दिस आर द मेथड, किर्बी बोर डिस्क डिफ्यूजन मेथड, ये क्या है, हमारा पेप्टोन वाटर, ठीक है, ये है हमारा पेप्टोन वाटर, और ये है हमारा सॉप स्टिक, ठीक है, तो हम बैक्टीरियल सस्पेंशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सस्पेंशन हमने प्रिपेयर किया, उसके बाद हम यहाँ पे लॉन कल्चर करेंगे, ठीक है, ये पूरी प्लेट पे हम बैक्टीरिया को स्प्रेड करेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, पुट द एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, देखो एक प्लेट में 6 एंटीबायोटिक्स दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, और यूजिंग एंटीबायोटिक डिस्क डिस्पेंसर, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो 6 एंटीबायोटिक हमने पुट किया, पुट करने के बाद इसको इंक्यूबेट किया, इंक्यूबेट करने के बाद एक एंटीबायोटिक का जो डायमीटर होता है वो 6 mm होता है, ठीक है, और इधर देखो 17 mm, मींस ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, ससेप्टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम, ये हमारा वर्नियर कैलिपर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो यूज होता है EST के मेजरमेंट में, ठीक है, तो हमने यहाँ पे EST को मेजर किया, ठीक है, तो एंटीबायोटिक डिस्क में देखो 6 mm के अलावा जो है यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या है कि 17 mm, ठीक है, तो यहाँ पे किल द बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को किल किया है, और यहाँ पे जोन ऑफ इन्हिबिशन जो है वो 17 mm है, ठीक है, ये जस्ट आपको बता रहे हैं, इतना आपको करना नहीं है, लिखना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको समझना है बस। ये हमारी जो है ऐसे ही हमारे यहाँ प्लेट होती है, ठीक है, ये हमारा MHA, ठीक है, MHA मीडिया, ऐसे ही एंटीबायोटिक हम पुट करते हैं, ठीक है, और ये ऑल एंटीबायोटिक्स ये ससेप्टेबल है सारी की सारी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 6 एंटीबायोटिक ओनली हम पुट करते हैं, ठीक है, 10 करते हैं, 20 करते हैं, ठीक है,
तो ये हमारी एंटीबायोटिक्स और ये हमारा मीडिया MHA, ठीक है। ये इंक्यूबेशन के बाद का रिजल्ट है ये। हाँ, ये है हमारी रिपोर्ट, ठीक है। ऐसे ही रिपोर्ट हमारे यहाँ हम बेचते हैं। तो इसमें देखो एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड सेंसिटिव, ठीक है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के ग्रोथ को देखिए, ठीक है। हमने जो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया वो इकोलाई, ठीक है। सैंपल था हमारा यूरिन, ठीक है। यूरिन में इकोलाई डिटेक्ट हुआ। उसके बाद दीज आर द डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, ठीक। कुछ एंटीबायोटिक यहाँ पे रेजिस्टेंट है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो ठीक है। जो रेजिस्टेंट है आप उसको नहीं दे सकते हैं, जो सेंसिटिव है आप उसमें कोई भी एंटीबायोटिक चूज कर सकते हैं, व्हाटएवर। कुछ एंटीबायोटिक्स इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया है हम कैसे देते हैं, एज पर CLSI गाइडलाइंस। ये क्या होता है, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, दीज आर द गाइडलाइंस, ठीक है, विच इंश्योर दैट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ AST, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैटर्न एंड पेशेंट आउटकम। नाउ स्ट्रोक मेथड, ये क्या है, स्ट्रोक मेथड जो यूज होता है वो यूजुअली हम स्क्रीनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा मीडिया MHA, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 हाफ में, ठीक है। एक टेस्ट स्ट्रेन है और एक है हमारा बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया, एक कंट्रोल स्ट्रेन। 2 बैक्टीरिया हम यहाँ पे हाफ हाफ लॉन कल्चर किए, ठीक है, और इसी के जस्ट सेंटर में 2 एंटीबायोटिक पुट किए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, कि दोनों टेस्ट स्ट्रेन और जो है कंट्रोल स्ट्रेन में कौन सा सेंसिटिव है, ठीक है। नाउ डाइल्यूशन मेथड, ये क्या करता है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल टू इनहिबिट और किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड, MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन बताते हम। ब्रॉथ डाइल्यूशन, अगार डाइल्यूशन, 3 टाइप का होता है, ठीक है। MIC, डिटेक्शन ऑफ MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो MIC क्या होता है, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल दैट विल इनहिबिट द विजिबल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन आइडियल ग्रोथ कंडीशन, ठीक है, लोएस्ट कंसंट्रेशन। और MBC क्या होता है, MIC मींस मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, शॉर्ट नोट आता है इस पे, ठीक है। और MBC क्या है, मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, लीस्ट कंसंट्रेशन, उसमें क्या था, लोएस्ट था, इसमें लीस्ट था, ठीक है। लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्ट एंटीबायोटिक्स विच विल कंप्लीटली किल द बैक्टीरिया। दोनों में फर्क समझे, ठीक है। ब्रॉथ डाइल्यूशन, ब्रॉथ डाइल्यूशन जो परफॉर्म होता है वो मुलर हिंटन अगार पे होता है, ठीक है। MHA मीडिया पे ब्रॉथ, ठीक है, वहां पे हमने अगार यूज किया था, यहाँ पे हमने ब्रॉथ यूज करेंगे, ठीक है। मुलर हिंटन ब्रॉथ इज यूज्ड। ब्रॉथ 2 टाइप का होता है, ब्रॉथ डाइल्यूशन 2 टाइप का होता है, ब्रॉथ माइक्रो डाइल्यूशन एंड ब्रॉथ मैक्रो डाइल्यूशन, ठीक है। तो ब्रॉथ माइक्रो डाइल्यूशन क्या होता है, सीरियल 2-fold डाइल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन 96 वेल, दैट इज माइक्रोटाइटर प्लेट, ठीक है। ये परफॉर्म होगा माइक्रोटाइटर प्लेट में, ठीक। और जो ब्रॉथ मैक्रो डाइल्यूशन होगा वो सीरियल 2-fold डाइल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक टेस्ट इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। MIC MBC ऑलरेडी बता चुके हैं हम। ये है पोस्ट इंक्यूबेशन ट्यूब्स, ठीक। यहां पे हमने 2 ऑर्गेनिज्म लिया है, ये हमारा स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है, और ये है हमारा इकोलाई, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहां पे ये यहां का जो पॉइंट है, ठीक है, 1:28 और यहां पे है 1:14। तो पॉइंट एट विच ग्रोथ इज इनहिबिटेड, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, जहां पे आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है, कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कोई हेजिनेस नहीं दिख रहा है, कोई क्लाउडी नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है टेस्ट ट्यूब, मींस वो जो है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, लोएस्ट कंसंट्रेशन, ठीक। और यहां पे आपको ग्रोथ दिख रहा है, देखो यहां से यहां तक ग्रोथ दिख रहा है, बट यहां से ये और ये पार्ट छोड़ के ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है, थोड़ा क्लाउडी दिख रहा है, ठीक है। तो यहां तक के जो है ग्रोथ को बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स ने किल कर दिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम माइक्रो
डाइल्यूशन, ब्रॉड डाइल्यूशन। ये है हमारा माइक्रोटाइटर प्लेट, ठीक है। ये भी पोस्ट इंक्यूबेशन है, इसमें भी 2 स्ट्रेन है, वही ई कोलाई और स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है यहां से यहां तक। यहाँ पे कुछ एलोइस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रहा है, तो क्लाउडी ट्यूब्स इंडिकेट्स ग्रोथ। स्टाफाइलोकोकस ऑरियस और ई कोलाई का ये पूरे में ग्रोथ है, ठीक है। बट 1:4 में उधर वो क्लियर है, मींस इनहिबिट द ग्रोथ। और यहां से 1:64 यहां तक क्लियर है, दैट मींस इनहिबिट द ग्रोथ। ये क्या होता है, ये भी जो है एमआईसी को डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसी लिए यूज होता है स्टैंडर्ड मीडिया मुलर हिंटन अगार। इधर हम अगार यूज करेंगे, उधर हम क्या करते हैं, ब्रॉथ यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये डबल डाइल्यूशन करते हैं। एंटीबायोटिक्स का डबल डाइल्यूशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगल अगार प्लेट। मींस एक ही अगार प्लेट पे वेरियस स्ट्रेन को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिखाते हैं हम, ये देखो यहां पे मैक्सिमम 10 जो है, हमने पूरे पे जो है 10 स्ट्रेन लिया है, ठीक है। यहां तक जो है बैक्टीरिया इनहिबिट नहीं कर पाया, ठीक है। यहां तक जो है इनहिबिट कर दिया है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ये है हमारा जो है, एक मिनट। हाँ, इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले जो है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का एक डाइल्यूशन बनाते हैं, डबल डाइल्यूशन, फिर लॉन कल्चर करते हैं, ठीक है। लॉन कल्चर करने के बाद वहां पे हम डिफरेंट स्ट्रेन पुट करते हैं, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेन है, देखो ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये डिफरेंट स्ट्रेन है। तो ये जो है बहुत इजी मेथड होता है, ठीक है। ये सारे के सारे 10 जो है स्ट्रेन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, 10 स्ट्रेन। तो जहां जहां पे देखो ये है, यहाँ पे इनहिबिट नहीं कर पाया एंटीबायोटिक, बाकी अदर स्ट्रेन को जो है वो इनहिबिट कर दिया है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। एक ही प्लेट पे एक ही टाइम पे वेरियस स्ट्रेन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है ई टेस्ट, जो हमने बताया था लास्ट, इप्सिलोमीटर, ठीक है। ये भी न्यूअर टेक्निक्स है टू डिटेक्शन ऑफ एमआईसी, मिनिमम इनिबिलिटी कंसंट्रेशन। तो क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लास्टिक स्ट्रिप विद ए ग्रेजुएटेड इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ठीक, अप्लाइड टू द सरफेस ऑन इनोकुलेटेड अगार प्लेट, ठीक, लाइक दिस। ये हमारा एमएचए, ठीक है, ये हमारा एमएचए, ठीक है। उसके बाद हमने इस पे इनोकुलम, बैक्टीरिया का इनोकुलम जो है लॉन कल्चर किया, फिर ये स्ट्रिप जो है हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पुट किया, देख रहे हैं ना। तो हमारा यहाँ पे कुछ ब्रेक पॉइंट दिखेगा, देखो, ठीक। ये जो इलिप्सॉइड आपको दिख रहा है ना, ये जहां पे एज पे, जहां पे आपको ब्रेक पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसको जो है, इसी एमआईसी को हम जो है उसी को हम ले लेंगे जो है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एमआईसी, मिनिमम इनिबिलिटी कंसंट्रेशन, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा अगार प्लेट है, ठीक। उसके बाद ये स्ट्रिप को हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक। उसके बाद ये इलिप्सॉइड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जहां पे इसका ब्रेक पॉइंट होगा उसी को हम मेजर कर लेंगे, रीड कर लेंगे उसी ब्रेक पॉइंट को, बस, ठीक है। वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट, ये क्या होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, विच कैन यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट एज वेल एज ईएसटी, ठीक है। तो ये जो वाइटेक 2 ये ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, इसमें हम बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं, समझे। और उसके बाद जो लेस टाइम लेता है, जैसे उसमें है 16 to 18 आवर्स लेते हैं, ठीक है। ये आपको 4 to 6 आवर्स में आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली होता है और ये इसका एडवांटेज बहुत है। और जो इसकी प्लेट्स आती हैं, ये डिफरेंट प्लेट्स हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव और फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म की अलग अलग जो है ये स्ट्रिप आती है, कार्ड आता है, ठीक है। तो ये है ऑटोमेटेड सिस्टम।